سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مدیحہ حسن۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24 News HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انسانیت اور سائنس کے لیے بڑا دن آ گیا۔ کرونا کے علاج کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی ہے، صرف 28 دنوں میں وائرس سے بچاؤ ممکن ہوگا۔ امریکہ اور جرمنی کی 2 بڑی فارما کمپنیز نے ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ویکسین 90% سے زیادہ مؤثر ہے۔ اور کرونا ویکسین کی تیاری کی خبروں سے عالمی سٹاک مارکیٹس میں ریکارڈ تیزی آ گئی۔ امریکی سٹاک کا فیوچر انڈیکس 5% سے بڑھ گیا۔ ویکسین کی تیاری کی خبر آتے ہی ڈاؤ فیوچر انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یورپین مارکیٹس میں 7% سے زیادہ اضافہ ہوا، جبکہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے سٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ کرونا ویکسین کی تیاری کی خبروں سے عالمی سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی آ گئی ہے۔ امریکی سٹاک کا فیوچر انڈیکس 5% سے بڑھ گیا۔ ویکسین کی تیاری کی خبر آتے ہی ڈاؤ فیوچر انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر حکومت پنجاب نے لاہور اور ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا۔ لاک ڈاؤن کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ اسلام آباد میں 5 سب سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا۔ کرونا کی دوسری لہر نے سر اٹھایا تو انتظامیہ نے بھی سر جوڑ لیے۔ لاہور اور ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور کے 13 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ انارکلی، مزنگ، گلشن راوی، DHA میں فیز 6 سیکٹر A، سیکٹر L، جبکہ سیکٹر AA کا علاقہ سیل کیا جائے گا۔ عسکری 11، کیولری گراؤنڈ، HPFC سوسائٹی B بلاک میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ نیو مسلم ٹاؤن میں C بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن میں رضا بلاک، سکندر بلاک اور عمر بلاک سیل ہوں گے۔ گارڈن ٹاؤن کے ٹیپو بلاک اور بابر بلاک میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ملتان میں نقش بند کالونی، گلگشت کالونی، میپکو کالونی، سادات کالونی اور ملتان کچہری کے علاقے کو سیل کیا جائے گا۔ کرونا کیسز بڑھنے پر پشاور کے مختلف علاقوں کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے 5 سب سیکٹرز کو کرونا کیسز کے پیش نظر سیل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے G83، G84، G62، G104 اور I92 کو سیل کیا گیا ہے۔ سیل کیے گئے سیکٹرز میں داخلی اور خارجی پوائنٹس پر پولیس کی نفری تعینات ہے۔ پولیس کی جانب سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ لاہور میں کرونا کیسز بڑھنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ضلع انتظامیہ نے فائلز میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، لیکن عملی طور پر کچھ نہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن غیر مؤثر ہونے پر شہر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بات کریں گے ایڈیٹر ہیلتھ زاہد چودھری سے۔ زاہد چودھری، بتائیے گا۔ جی، اکتوبر میں جب کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ شہر میں دوبارہ بڑھنا شروع ہوئے تو اس کے ساتھ ہی یہ پالیسی وضع کی گئی تھی کہ جہاں پہ بھی 2 کیسز رپورٹ ہوں گے اس جگہ کو جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں نہ صرف ان کی نقل و حرکت کو محدود کیا جائے گا بلکہ جو ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے اور کانٹیکٹ سیمپلنگ ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس ایریے میں جو انٹریز ہیں اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا جائے گا۔ یہ 398 مقامات جو ہیں وہ شہر میں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں شامل کیے گئے۔ 1266 شہریوں پر مشتمل یہ آبادی تھی جس کو لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن عملی طور پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے شہر میں جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے صرف کاغذوں کی حد تک تو یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لکھ دیا اور اس میں یہ درج کر دیا کہ یہ کیا گیا ہے، لیکن عملاً ان ایریاز میں یہ 398 پوائنٹس جو ہیں ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جس طرح اس کو ٹرو اسپرٹ میں ہونا چاہیے تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ حیدرآباد میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 16.59% ہو گئی۔ ملک کے 4136 مختلف حصوں پر مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں کہا گیا کہ حالیہ پابندیاں 16 بڑے شہروں میں 31 جنوری 2021 تک نافذ رہیں گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت کرونا کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی چیف سیکرٹریز کی جانب سے اجلاس کو زیادہ شرح والے شہروں میں اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ بڑے شہروں میں شرح مثبت میں تیزی سے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ اجلاس میں کرونا کے حوالے سے اعداد و شمار کی شرح پر بریفنگ دیتے کہا گیا کہ کرونا کیسز میں اضافے کی شرح 4.5% تک پہنچ چکی ہے۔ 15 شہروں میں کرونا وائرس کی مثبت شرح زیادہ ہے۔ گلگت میں 15.38، ملتان
11.97 और मुजफ्फराबाद में शरह 14.12% हो गई। मीरपुर में 11.11 और पेशावर में 9.69% हो गई है। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.37% हो गई है। इजलास में बताया गया कि मुल्क के 4,136 मुख्तलिफ हिस्सों पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, जबकि हालिया पाबंदियां 16 बड़े शहरों में 31 जनवरी 2021 तक नाफिज रहेंगी। जबकि शादी हॉल्स मालिकान ने हुकूमती फैसलों को मुस्तरद कर दिया, बीवी बच्चों समेत भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। मुल्क गिर एहतजाज का आगाज कल गुजरांवाला से किया जाएगा। रावलपिंडी से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। शादी हॉल्स और मार्कीज के लिए सख्त SOPs को शादी हॉल मालिकान ने मुस्तरद कर दिया और ऐलान किया कि वो बीवी बच्चों के साथ भूख हड़ताल करेंगे। एहतजाज का आगाज गुजरांवाला से होगा और फैजाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। हम पूरे पाकिस्तान में इसको किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करते। ये जो इन्होंने 2-4 दिन पहले जो किया है उसको भी नहीं तस्लीम करते, और जो रात को इन्होंने जो कुछ किया है हम उसको भी तस्लीम नहीं करते। हम कल गुजरांवाला से इस तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। जलसों पे तो पाबंदी नहीं लगा रहे। इमरान खान साहब आप खुद जलसे कर रहे हैं, अपोजिशन जलसे कर रही है, लाखों का कितना वहाँ पे SOP पे अमल कर रहे हैं, वहाँ तो SOP पे कोई अमल नहीं हो रहा। और आपने सारा जोर एक गरीब पर डाला हुआ है। ये जो बेचारे वेटर हैं, दिहाड़ीदार हैं, इनको बंद कर दिया जाए। शादी हॉल्स मालिकान ने हुकूमत से गुस्से और नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि 6 माह कारोबार बंद रहा, हमारा काफी नुकसान हुआ है। हुकूमत ने हमसे मशवरा किए बगैर ही सारे फैसले कर लिए। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज, रावलपिंडी। इस वीकेंड पर मुल्क के कुछ इलाकों में बादल बरसेंगे। बारिशों के बाद मुल्क में सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा होगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक का कहना है कि पेशावर, हज़ारा, शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में वीकेंड पर बारिश होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा और फैसलाबाद में बूंदाबांदी का इम्कान है। तब क्या है मौसम की अपडेट? नहीं, एक अच्छी खुशखबरी आपको आज दे देते हैं कि वेदर के आस्ता आस्ता कुछ ऐसा सेटअप बन रहा है कि इंशाल्लाह इस वीकेंड को हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ और जिसमें इंक्लूडिंग पेशावर, हज़ारा डिवीजन्स और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ये थोड़ा सा और नीचे सरगोदा और फैसलाबाद तक भी जा सकता है। इसमें लाइट सी रेन होगी, लेकिन उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो पोल्यूशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी। मैंने आपको कहा कि वेदर सिस्टम एक अप्रोच कर रहा है, लाइट सा वेदर सिस्टम है, लेकिन उसके जो इम्पेक्ट हैं वो साउथ तक चलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि सिंध में टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री तक ड्रॉप हो जाएगा, जो भी चल रहा है अभी नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे चला जाएगा। और अगर आप सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं या पंजाब के साउथ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसका थोड़ा सा इम्पेक्ट होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर्स में ड्रॉप होगा। सियासी मौसम की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक मंसूबा भी नहीं दिया। जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, आवाम को हुकूक मिले। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि हम यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले हर मौका पे उसने मुखालफत किया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आया तो इमरान खान का रिव्यू पिटिशन मौजूद है। जब उसका कैबिना में ये जनवरी में ये टॉपिक उठा तो उस वक्त भी मुखालफत किया। अचानक सोच रहा है इलेक्शन के दौरान हम हुकूक देने वाले हैं, हम हुकूक छीनने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप वाज़ी अक्सरियत दिलवा दें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आपके नौजवानों को, यहाँ के अवाम के लिए हक़ रोज़गार को भी डिलीवर करना है। मुस्लिम लीग नून की गिलगित में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। नगर और गोप्स में धुआंधार खिताब के दौरान मरीम नवाज ने हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहती हैं जाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं किया, इस हुकूमत के नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं। मजीद कहा कि अमरीका में बदजुबान को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, अब पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। बदजुबानी हम भी गिर सकते हैं, लेकिन ये हमारा वतीरा नहीं, वज़ीर इत्तला नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वफाकी वज़ीर ने बिलावल और मरीम नवाज़ के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल की। शिबली फराज दूसरों की ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मोदी के जीतने के लिए दुआ करने वाले को वफादार कहा जा रहा है। ट्रंप का हाल देख लिया, इनका भी यही हाल होगा। नासिर हुसैन शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है कि नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 48 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी।
हुकूमत ने परेशान हाल आवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। अगस्त में बिजली की पेशगी फ्यूल लागत 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट थी। नेपरा के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी। नेपरा के इस इकदाम से सार्फिन पर 5 अरब रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। याद रहे कि इलेक्ट्रिक पर इसका इतलाक नहीं होगा। सार्फिन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पर ताजरों ने सवालात की बौछार कर दी। चौधरी सरवर ने जवाब दिया कि हमसे गलतियां हुई हैं, चीनी और गंदम एक्सपोर्ट न करते तो कीमतें न बढ़ती। हमें अपोजिशन से ख़तरा नहीं, हमें महंगाई से ख़तरा है। चौधरी सरवर का कहना था कि वो पॉलिसी मेकर होते तो सबसे आखिर में मीडिया की तरफ आते। तो पाकिस्तान की कौम ने ड्यूरिंग कोविड-19 एक बात साबित कर दी कि उन्होंने अपने किसी पड़ोसी को भूखे नहीं सोने। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी है और हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपके पार्टनरशिप के साथ आपको सपोर्ट करके इंशाअल्लाह हम अपनी एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब बिजनेस कम्युनिटी खुशहाल होगी तो फिर हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। मीडिया मैनेजमेंट भी आजकल एक पूरा साइंस है और अगर मैं पॉलिसी पीछे की बना रहा होता तो मैं मीडिया के साथ सबसे आखिर में गुजारता। तो यकीनी तौर पर हमारा फोकस जो है एनर्जी एफिशिएंसी पे और सोलर पे, विंड पे और हाइड्रो पे होने चाहिए। हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी और जरिए से हम एनर्जी जो है वो पैदा कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने ANP के शोहदा से मुतालिक बयान पर ANP से माफ़ी मांग ली। एजाज शाह माजरत करने के लिए पेशावर में बाचा खान मरकज़ पहुँचे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी उनके हमरा थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह का कहना था कि उनके बयान का गलत मतलब लिया गया, वो हरगिज़ किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। परवेज़ खटक का कहना था कि हम जिरगा लेकर आए थे जो ANP के रहनुमाओं ने कबूल कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने कहा कि हमने अपने मुतालबात वापस ले लिए। उन्होंने 11 तारीख को इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 143वां यौम विलादत मनाया गया। कराची यूनिवर्सिटी में इकबाल डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर जामिया कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने अल्लामा इकबाल का कलाम पेश किया। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, है वजह शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम। शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद इराकी, असातिज़ा मुसर्रिफ डॉक्टर ताहिर हमीद, उमर खजाली और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी समेत दीगर शख्सियात ने अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डाली। अल्लामा इकबाल ईस्ट वेस्ट दोनों के पोइट हैं, तो अक्सर हम अल्लामा इकबाल की जो फिलॉसफी है, उनकी पोइट्री है, किसी एक रीजन तक महदूद कर देते हैं, पर फिलॉसफर और पोइट किसी रीजन तक महदूद नहीं रहता। इकबाल के यहाँ ऐसी किसी मोहब्बत का तस्वुर नहीं जो हमारे यहाँ आम फहम है। दूसरी बात, इकबाल के यहाँ पैसिव मोहब्बत का भी कोई तस्वुर नहीं। इकबाल के यहाँ जो मोहब्बत है वो एक्टिव, हरारत से भरपूर, जोश बलबले से भरपूर मोहब्बत है। और अहम बात, इश्क रसूल में डूबी हुई मोहब्बत है। कराची यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल की जिंदगी से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। यौम इकबाल पर पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नार्ड शलाघिक ने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश किया। जर्मन सफ़ीर का कहना है कि आज अजीम मुफक्कर और शायर अल्लामा इकबाल को याद किया जा रहा है। बिलाशुबा अल्लामा इकबाल को जर्मनी और जर्मन सकाफ़त से ज़िंदगी भर उनसियत रही। उनके कलाम ने खूबसूरत अंदाज में मशरक़ी और मगरबी सकाफ़त की मुश्तरका पेशकदमी और उनसियत को उजागर किया। करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख बरादरी ने शिरकत की। भारतीय हठधर्मी के बायस भारत से सिख बरादरी शरीक नहीं हो सकी। करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में VC नारोवाल यूनिवर्सिटी डॉक्टर तारिक महमूद और दुनिया भर से आए सिख बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ
जनरल कमर बाजवा साहब ने इस लांघा जो ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ पाकिस्तान हुकूमत का तमाम इदारे का असी मशकूर हाँ। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले सिखों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी है। ताहम नाम नेहाज सेकुलर भारत करतारपुर राहदारी में मुसलसल रोड़े अटका रहा है। भारत ने कोरोना को बुनियाद बनाकर राहदारी को ताहाल बंद रखा है, जिसके बायस भारतीय सिख तकरीब में शरीक नहीं हो सके। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई का एक बार फिर मौका दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के वकील शाहनवाज नून ने हिदायत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अदालत से रुजू कर सकता है। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट इसी बारे में है। कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की हुकूमती दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। भारत कहता है इस केस में वकालतनामा जमा कराना उनकी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इस अदालत से रजू कर सकता है। हमें बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस हवाले से राब्ते होते रहे हैं। एक और भारतीय कैदी के केस में पेश होने वाले भारतीय हाई कमीशन के वकील ने कहा कि उन्हें कुलभूषण यादव का वकील मुकर्रर किया गया था। भारतीय सफारत खाने के कहने पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस से दस्तावेजात तलब किए लेकिन इनकार कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दस्तखत करदा वकालतनामा पेश करें तो इन्हें दस्तावेजात फराहम कर देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले पर मुनासिब मौक़िफ़ अपनाया है। अदालत ने केस की समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर्स के माली साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। सेनेटर ताज आफरीदी 1 अरब 22 करोड़ 27 लाख रुपए के असासों के साथ सबसे मालदार सेनेटर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 12 कनाल की वरासती ज़मीन और 3,61,000 रुपए के कारोबार के साथ गरीब सेनेटर्स में शामिल हैं। ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की असासों की मालियत 10 करोड़ 63 लाख रुपए है। सेनेटर आजम स्वाति 81 करोड़ 12 लाख रुपए, वजीर कानून फरोग नसीम 39 करोड़ 96 लाख रुपए, वजीर इत्तलात शिबली फराज 4 करोड़ 67 लाख रुपए, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला 6 करोड़ 77 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। सेनेट में कायदे अवान शहजाद वसीम 20 करोड़ 21 लाख रुपए, जबकि उनकी अहलिया के असासों की मालियत 17 करोड़ 23 लाख है। सेनेटर फैसल जावेद 1 करोड़ रुपए, सेनेटर अब्दुल कयूम 8 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। सेनेटर राजा जफरुल हक ने इलेक्शन कमीशन में अपनी जायदाद जाहिर की लेकिन मालियत नहीं बताई। बैंक में सिर्फ 50,000 रुपए जाहिर किए। सेनेटर रहमान मलिक 1.3 मिलियन पाउंड के बैरून मुल्क असासों के मालिक हैं। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी तकरीबन 63 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर 12 करोड़ से जायद गैर मनकूला जायदाद के मालिक हैं। उनके 1 करोड़ 50 लाख रुपए स्टॉक शेयर, 3 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद की गाड़ियां और 2 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद की रकम बैंक अकाउंट में है। सेनेटर रजा रवानी का 1 करोड़ 53 लाख रुपए मालियत का कारोबार है। 62 लाख रुपए की तोहफे में मिली जायदाद, जबकि बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं। सेनेटर सलाउद्दीन तिरमिजी 19 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। ज़िशान भट्टी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। महकमा इत्तलात सिंध में 18 डायरेक्टर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। अजीज़ अहमद हकड़ू को डायरेक्टर इश्तिहारात, जुल्फ़िकार शाह को डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन मुकर्रर कर दिया गया। महकमा इत्तलात सिंध में और किन किन ओहदों पर तब्दीलियाँ हुई हैं, जानते हैं। एडिटर सिंध रफ़ीक भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक भुट्टो बताइएगा कहाँ कहाँ पर तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, महकमा इत्तलात सिंध में आज वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह की मंजूरी से सेक्रेटरी इमरान अता सुमरो जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें महकमा इत्तलात के 18 डायरेक्टर्स की तबादले वो तकर्रियाँ की गई हैं, जिसमें अजीज अहमद हकड़ो जो कि ग्रेड 19 के अफसर हैं उन्हें डायरेक्टर इश्तिहारात मुकर्रर कर दिया गया है और वहाँ से जुल्फ़िकार शाह का डायरेक्टर का तबादला कर दिया गया है। इसी तरह शबील हसन है, इसी तरह रियाज मेमन है, हिजबुल्ला मेमन हैं, असलम परवेज जतोई हैं, उनके भी तबादले कर दिए गए हैं, जबकि इम्तियाज जोयो को डायरेक्टर सखर महकमा इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रफ़ीक भुट्टो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
اور روس نے امریکہ سے بھی بہتر ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ سپوتنک 5 ویکسین فائزر کی ویکسین سے زیادہ مؤثر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، روس نے امریکہ سے بھی بہتر ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ سپوتنک 5 ویکسین فائزر کی ویکسین سے زیادہ مؤثر ہے۔ جبکہ پی ایس ایل 5 کے پلے آف مرحلے کے میچز کے لیے ٹیمیں کراچی پہنچ گئی۔ 14 تاریخ کو 2 میچز ہوں گے۔ پشاور زلمی نے نیشنل اسٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس کی، تفصیلات جان لیتے ہیں۔ محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود بتائے گا کیا سرگرمیاں ہیں کھلاڑیوں کی؟ پی ایس ایل 5 کے پلے آف مرحلے کا آغاز دوبارہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پشاور زلمی اس وقت کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کے اندر پریکٹس سیشن کے اندر مصروف ہے۔ پشاور زلمی کی طرف سے شعیب ملک، راحت، یاسر شاہ، امام الحق اور کارلس بریتھفرڈ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ 14 تاریخ کو جو ہے وہ میلہ سجے گا پی ایس ایل کا۔ آج جو ہے یہ ٹیم انتہائی سیکیورٹی کے اندر جو ہے پشاور زلمی کی ٹیم جو ہے وہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم آئی اور اس وقت یہاں پر پریکٹس سیشن میں موجود ہے۔ تو یقیناً کرونا کی وجہ سے جو میچ نہیں ہو سکے تھے وہ اب پلے آف مرحلہ یہاں پر ہوگا۔ تماشائی نہیں آ سکیں گے کووڈ کی وجہ سے، اور جو کھلاڑی ہیں وہ بھی بایو سیکور ببل کے اندر ہیں، ان کو بھی ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت برقی کمکموں کی روشنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پی ایس ایل کے پلے آف مرحلے کے لیے پریکٹس کا آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا میچ جو ہے وہ 14 تاریخ کو 2 میچز کھیلے جائیں گے، اس کے بعد 15 تاریخ کو میچ ہوگا، اور 17 کو پھر جو ہے وہ پی ایس ایل 5 کا فائنل ہوگا کہ پی ایس ایل 5 کی چیمپئنز ٹیم محمود ریاض بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔